Hello, everyone. Good afternoon. Very good afternoon to all of you. And we are back with a very interesting session. And last time I had taken Hammermillis. So thank you. You all liked it and for all the appreciation. And today that the drug we are going to take is phosphorus. I know lots of you must be knowing about phosphorus, but it is really very, very difficult sometimes to catch phosphorus. क्योंकि जो हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं वो हमेशा हमारे क्लिनिक पे वैसे ही दिखेगा, ऐसा कम होता है. So first I'll discuss the basic image of phosphorus and then we'll go to some entry points in phosphorus. Like in clinic where you can pick phosphorus, right? So phosphorus के लिए word use किया जाता है diffuse, they are volatile. जैसे परफ्यूम होता है वो इधर उधर फैल जाता है, उसकी खुशबू हर जगह आ रही होती है, वैसे ही फॉस्फोरस होते हैं. सो फॉस्फोरस व्हेन द फॉस्फोरस मीट यू ना, अगर नॉर्मली फ्रेंड्स हो आपके तो दे वुड बी लाइक हाय हाउ आर यू, इट्स बीन सो लॉन्ग, एंड दे विल हग यू एंड किस यू एंड बी शोइंग सो मच वार्मथ. आई हैव अ फ्रेंड लाइक दैट and they would show as if they are so close to you and they really wanted to meet you and see you, and they would hug you and would be like, oh God, we met after so long, it's so nice to catch. But actually ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ बाहर का है. तो फॉस्फोरस नॉर्मली अगर पार्टी में होगा तो पार्टी की जान होगा. दे वुड बी वेरी अफेक्शनेट, वेरी लविंग, वाइवेशियस, cheerful. अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन, मतलब वो हमेशा आप जितना अफेक्शन दिखाएंगे वो आपको रिटर्न करेगा उस तरीके से, मतलब कुछ भी तरीकों से. और helping होगा, sympathetic, benevolence, that is all that we have read till today, that they are so pleasing, such a nice warmth है phosphorus में, you like being with them. But there is another side of phosphorus also which we are probably not very much aware, and that is hypocrisy. वो जितना दिखा रहे हैं ना उतना नहीं होता. I have understood this drug recently very, very beautifully because one of my very close friend, I realized that she's phosphorus. So I have studied this drug in depth after that. Recently, one of my father's friend, uncle, called me up and he said, so he's a very old friend of my father's and he lives in Gwalior, and he calls me up and said that my son wants to talk to you. He has some problem of kidney stone. So I said, okay, you give me you give him my number and ask him to call me. And so that guy, I must have met him when I was 5, 6, 7, 8, probably. I was very, very young. I don't even remember his face clearly. And then now he shifted to US. So this guy now calls me up and said, oh, hello Ruchi, hi, how are you? It's been so long, we didn't catch up. I just remembered, मैंने कहा हाँ, the basic greet I did, and I said, बोलो क्या problem है? And then he was still going on, it's been so nice, as kids we used to play so much. I was wondering, यार मुझे तो याद नहीं आ रहा है. Very, very faint memories of, yes, we played, but then we was very, very small. And फिर 2 मिनट हो गए and फिर again I said, बोलो क्या प्रॉब्लम है, कैसे याद किया? आपकी पड़ोसी भी थी ना, we used to play so much. And I was wondering, यार ये इतनी बातें क्यों कर रहा है? That is the same way that you will get phosphorus in your clinic. वो पहले एक रिलेशन बनाते हैं आपके साथ, वो डायरेक्ट बिजनेस पे कम आते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे नहीं आते. वो इतनी भूमिका बनाएंगे. उसने मुझसे 10-15 मिनट बात की एंड टोल्ड मी हाउ फॉन्ड मेमोरीज ही हैज विद मी, एंड एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू. एंड आई वाज वंडरिंग इतनी बात क्यों कर रहा है इस बारे में, So that is phosphorus. So जितना भी हम मटीरिया मेडिका में इमेज में पढ़ लें, you have to catch patients in your clinic, and clinic पे obviously they will not come and immediately hug you and kiss you, but there are other ways where you can catch phosphorus. For example, जब phosphorus आएगा तो वो जैसे कुछ लोग दूर बैठते हैं ना, स्ट्रेट बैठेंगे, और कुछ लोग would come this way, या बच्चे भी होंगे तो if the child enters the clinic, the child will be clinging to mother, or when they would sit on the table like this if you are sitting in front, so they will clinging grasp at others, clinging furniture, person or furniture to you. या फिर आप उनको एग्जामिनेशन के लिए बुलाओगे तो वो आपके बहुत पास आ जाएंगे. So they want to magnetize desire to be, mesmerism ameliorates. These are the rubrics, and these is live
behavioral of patient that you can pick and you can understand that the जैसे बराइटा छुप जाता है, हमने डिस्कस किया था, लाइक नेट्रल म्यूर भी वॉल की तरफ देखकर बात कर रहा है, या फॉस्फोरस बहुत अफेक्शनेट होते हैं. जब वो आएंगे क्लिनिक पे आपको लगेगा हाय हाउ स्वीट दिस पर्सन इज, वेरी नाइस. इवन वेटिंग रूम में मेरे पास आज से 10 years पहले एक बच्चा आता था. वो जब क्लिनिक में आता था तो all waiting room used to be so fond of him and he used to make friends with everyone. So you know that the phosphorus has arrived, you know, कि सबके साथ बातें करेगा. They will ask you, hello doctor, how are you? You look so pretty. This white color suits you, huh? Flattery, you know. मैं बीमार पड़ी, मुझे तो लगा मुझे तो डॉक्टर रुचि के पास ही जाना है, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो. योर मेडिसिन ऑलवेज सूट मी. पर असलियत में वो 10 डॉक्टर के पास भी और जाती होगी, बट द काइंड ऑफ फ्लैटरी, द काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म, द काइंड ऑफ वार्मथ दे वांट फ्रॉम यू, और ये बहुत टिपिकल है फॉस्फोरस का. यू हैव टू पिक दिस अप. हाथ भी मिलाएंगे तो जिस तरीके से मिलाएंगे, वार्मथ, हग भी करेंगे. एक होता है ना लोग ऐसे कर्टसी के लिए करते हैं, और एक होता है इवन दे विल रियली हग यू, यू कैन फील द वार्मथ. दैट इज फॉस्फोरस. You can see it all around you. Even children would come very close to you, will hug you, hello doctor. Sometimes children will give you flying kiss. That kind of warmth and intimacy, and that when they talk also you can feel it. But sometimes when these people are doing, you are actually not very close to them. Are you understanding? You are not very close and such close bond that you share, but they still do it. That is the hypocrisy of phosphorus. फॉस्फोरस अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है. उसका जब हम डिल्यूजन वेल्थ पढ़ते हैं और अलग अलग रेमेडीज की हम वेल्थ पढ़ते हैं, तो फॉस्फोरस की वेल्थ है उसके कॉन्टैक्ट्स. So many people are my friends, everybody calls me for a party, I'm so nice, that kind of an attitude phosphorus has. And if they are in the party also, they are the center of attraction in a party. So फॉस्फोरस की वेल्थ कॉन्टैक्ट्स की होती है. फॉस्फोरस बताएगा अरे ये भी मेरा दोस्त है, उसको भी मैं जानता हूँ, इसका भी है. दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड फॉस्फोरस हैज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम व्यू indications where you can pick phosphorus. कि तो एक बेसिक आइडिया हो गया. phosphorus doesn't have a very deep friendship bond, they are very shallow. उनको, और फॉस्फोरस का अगर आपका पर्सनली किसी से प्रॉब्लम भी हो जाए, जो फॉस्फोरस है, तो वो नॉर्मली फ्रेंडशिप तोड़ता नहीं, वो बना के रखता है. क्यों? कब किसकी जरूरत पड़ जाए, और बहुत एक रूब्रिक है ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन. ऐसे 2 रूब्रिक है. ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा. आप तो हमारे भाई जैसे हैं, यू आर लाइक अ फैमिली, सो आई थॉट आई ऑलवेज शुड कॉल यू फर्स्ट. बल्कि रियलिटी में वो किसी और को भी कॉल करते होंगे, पर जब आपसे बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे यू आर द मोस्ट क्लोजेस्ट वन, यू आर द वन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देम. बट व्हेन यू सी इन रियलिटी दे टॉक इन द सेम वे टू 10 other people. So this is the hypocrisy of phosphorus. हाँ, तो जब आप क्लिनिक पे भी आएंगे, जो मैंने ये रूब्रिक समझाती हूँ मैं, ये ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ एंड बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन. ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा. यू आर लाइक माय ब्रदर और सिस्टर, और यार भाइयों में क्या बॉयज बोलते हैं ना, भाई का बर्थडे है, भाई है यार, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है, तो ये भाईचारा वो डॉक्टर के साथ भी दिखाता है. you're like a family. And borrowing from everyone, जब उसको नीड होगी, जिस जने से जो जरूरत होगी, वो बहुत आराम से, बहुत अफेक्शन के साथ उस पर्सन पे जाता है और उससे वो काम करा लेता है. और उस पर्सन को रादर ऐसा फील होता है ओब्लाइज्ड कि यार ये बंदा मेरे को याद किया, इसने मुझसे काम कराया. So that is the how phosphorus is. अब now we have to understand phosphorus in disease state, right? So disease में क्या है? Phosphorus has lot of anxiety in dark, and darkness aggravate and light desire for. अगर हम ये 3 rubric combine करें तो stramonium, phosphorus, calcarea, I think these 3 drugs only come. तो बहुत डरता है डार्क में. डार्क क्या होता है? जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, द थिंग्स दैट यू डोंट नो.
सो डिजीज़ है और आपको नहीं पता कि ये क्या डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल मुझे सर्दी खांसी हो गई और मुझे नहीं पता कि डेंगू है या नॉर्मल वायरल कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, फीवर आ रहा है और या फिर कोविड है, तो मुझे टेंशन होगी। मेरे को टेंशन होने लगती है, यार ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे तो कभी नहीं हुआ, इतना बुखार क्यों आ रहा है। लाइट डिजायर में रहते हैं, क्यूरियस में रहते हैं, तो दे विल आस्क। एंड वन थिंग इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट phosphorus इज दे विल डिस्कस symptoms with everybody. I'll give you here one example. Recently one of my cousin brother had COVID, and uh, he called me up and said, I'm discussing a small case with you here, and he called me up and said कि यार मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है ये वो. So I said, you get yourself tested, and then he got himself tested and COVID positive आया. अब मैं उनको दवाई दे रही थी एंड ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वेल. तो मैंने बोला कि, तो ही वॉज सेइंग अरे वो तो बोल रहा था कि HRCT करा लो, और वो तो बोल रहा था कि तुम एंटीवायरल शुरू कर दो. मैंने कहा ये वो कौन है, मतलब कौन बोल रहा है. तो सेड मेरा दोस्त है ऐसे ऐसे XYZ, उसने बोला कि नहीं नहीं कराना पड़ेगा. फिर मेरा भाई का वो है, वो बोल रहा था. मैंने बोला आप इतने लोगों से बात क्यों कर रहे हो. सर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो फ्रेंड्स हैं इसलिए बात हो जाती है. बट दिस इज द नेचर ऑफ phosphorus. दे वुड इन डिजीज दे गेट एंशियस एंड दे वांट टू डिस्कस सिम्टम्स विद एवरीवन. वो 10 लोगों से पूछेंगे यार ये हो रहा है क्या करूं, यार ये हो रहा है क्या करूं. और साथ में इम्प्रेशनेबल है. इम्प्रेशनेबल क्या होता है, वो छोटे बच्चों के हम हाथ का इंप्रेशन लेके लोग फोटो फ्रेम करते हैं ना, तो वैसे जो भी बात होती है उसका छाप छूट जाती है उनपे. सजेस्टिबल, रीअश्योर्ड इजिली, ऐसे रूब्रिक्स हैं phosphorus में. मतलब सजेस्टिबल होता है, मतलब जो भी सजेशन दो आराम से मान जाते हैं. तो जब 10 लोग, एक तो वो डिस्कस करेंगे 10 लोगों से, राइट, और फिर जब 10 लोग उनको कुछ ना कुछ सजेशन देंगे, वो उस सजेशन को मान लेंगे या उसका इंप्रेशन पड़ेगा, फिर आपको कॉल करेंगे एंड सेड कि यार ये तो ये बोल रहा है, क्या करूं. Are you understanding? So there is a lot of anxiety, fear with anxiety dark in. इसलिए वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे आर वेरी क्यूरियस, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्यों मुझे इतनी खांसी हो रही है, क्यों यहाँ पे बलगम अटक रहा है. कम्युनिकेटिव होते हैं हैंड्स के एक्शन से. एक पेशेंट थी वो ड्रॉ करके लाती थी. कोई भी अदर मीन्स से आपको अपनी तकलीफ समझाना इज अ quality of being communicative. You're trying to communicate your thing by other means than verbal. हाथ के इशारे से दिखाना मुझे यहाँ दुख रहा है, so these are communicative. तो जब वो डिजीज में रहते हैं तो वो पहले तो मैंने बताया कि डिस्कस करते हैं सबके साथ. दूसरी बात, एंजाइटी में रहते हैं, उनको लाइट चाहिए, उनको डार्कनेस एग्रीवेट है कि भैया क्या बीमारी हो गई मेरे को, है ना. क्यूरियस रहते हैं. एंड वन थिंग, वो जब आपके पास भी आएंगे ना तो आपको पूछेंगे कि डॉक्टर आपने ऐसे लोग पेशेंट देखे होंगे ना, आपने ठीक किए हैं, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर, आपने डेंगू के पेशेंट ठीक किए. तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूरियस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वांट्स टू नो कि भैया आप इतने एक्ट हो कि नहीं मेरे को ठीक कर पाओगे, क्योंकि एंजाइटी में है, लाइट चाहिए. एंड देन जब उनको श्योरिटी मिल जाती है तो वो डिपेंडेंट ऑन द फिजिशियन हो जाते हैं. बट phosphorus पेशेंट अगर एक बार आपके पास आया तो वो काफ़ी टाइम तक दवाई लेता है, परसिवरेंस में है. अगर आपका कोई पेशेंट आ रहा है और बहुत टाइम से आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा और फिर भी लिए जा रहा है, देन यू कैन टेक अ रूब्रिक परसिवरेंस. अब परसिवरेंस आप उस, कई बार अगर मेरे पास कोई फेलियर है, अगर मतलब रहते ही हैं ऑब्वियसली, पर कोई पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड स्टिल कंटिन्यूइंग विद द ट्रीटमेंट, देन आई विल ऑलवेज आस्क कि यार आपको रिजल्ट तो है नहीं, आप क्यों दवाई लिए जा रहे हो. तो इसे नहीं थोड़ा है ना, 10% कम हो गया, या लाइट डिजायर फॉर्म में रहते, थोड़ा भी कम हो जाए तो वो परसिवरेंस में रहते हैं. उनको आप लाइट दिखा दो. तो अगर आप उनको लाइट दे पाए कि ये देखो एक्जिमा इतना था, इतना हो गया है, या उसको हो पा रही है, तो वो परसिवियर करेगा. तो परसिवरेंस, लाइट डिजायर फॉर्म में शायद 2 ही रेमेडी अगर हम ये कंबाइन करें, विच इज एकोनाइट एंड phosphorus. और इवन एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, इसमें भी एकोनाइट एंड phosphorus है. तो अगर बहुत एंशियस हो के पेशेंट आपके पास आया कि यार मेरे को ना आज यहाँ पे गांठ फील हुई, क्या है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, क्या हो जाएगा, और आप थोड़ा उसको समझाएं और पेशेंट बोले अरे आपने बोल दिया ना डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई चिंता नहीं,
तो ये 2 ही रेमेडी होती हैं, या तो फॉस्फोरस या एकोनाइट। आप थोड़ा और उसको आगे देखेंगे तो यू विल कम टू नो। बट फॉस्फोरस बिजनेस की बात करेगा, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, और जो फॉस्फोरस का मैनरिज्म होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एकोनाइट, क्योंकि एकोनाइट डायरेक्ट डेथ पे जाता है, प्रेजेंटिमेंट डेथ, फियर डेथ ऑफ प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, इतना पैनिक में आता है। वेरएस दोनों ही दवाइयां एंजाइटी अगर आप उनको रियोश्योर कर दो तो इंडिफरेंस में चली जाती है, राइट। So these are some small pointers where you can see phosphorus in your clinic, right? जो बच्चों में कैसे दिखेंगे, फॉपिश, दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, उनको मिरर्स में देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनके घर में देखेंगे चारों तरफ बड़े बड़े मिरर्स हो सकते हैं। कैथरीन कुल्टर ने यह बात लिखी है, मेरी डॉक्टर की एक फ्रेंड है, वो आएगी भी ना घर में तो 10 बार चीज छोटे छोटे बाल अपने यूं शी इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, so they like that, elegance, foppishness, they want to dress up properly, elegant होते हैं, they'll have nail paints, lipstick, liner, well dressed, beautiful dresses. Otherwise also we see जैसे जो phosphorus का description typical दिया हुआ है, it is very charming, elegant, nice, long eyelashes, that kind of picture, अगर वो travel पे जा रहे हैं तो 10 लोग उनके दोस्त बन जाएंगे, ऐसा है। तो yes, coming back to how will you pick phosphorus in your clinic, first I said that anxiety dark, light desire, curious, अगर आपसे आपकी ट्रेनिंग पूछें तो phosphorus के आप जा सकते हो। छोटे बच्चों में मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, मैंने अभी 6 मंथ्स 9 मंथ्स के बच्चे को फॉस्फोरस दिया था, और क्या हुआ था, वो बच्चा ऐसे ही सपोज मामा की गोदी में था, 9 मंथ्स का भी नहीं था, शायद 6-7 मंथ्स, वो मैंने एक जूम सेशन में प्रेजेंट भी किया था केस, तो बच्चा गोदी में था, तो वो बच्चा ना मेरे को ऐसे देख रहा था, हाँ, चारों तरफ देख रहा था, मेरे को देख रहा था, और फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसे लिखने लगी जानबूझ के, तो वो बच्चा मेरे पेन की तरफ देखने लगा, फिर मैंने जानबूझ के स्टेथो या पेपर ऐसे उठाया, तो वो पेपर की तरफ देखने लगा, तो जानबूझ के मैंने उस अपना पेन गिरा दिया, तो वो पेन की तरफ ऐसे देख, ये क्या है, वॉचफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, अलर्ट, एवरी मूवमेंट ऑफ द डॉक्टर दे विल ऑब्जर्व। इसमें 2 ही दवाइयां हैं, कैलकेरिया फॉस एंड फॉस्फोरस। तो कोई भी बच्चा आपके क्लिनिक पे आए और आप देखें कि वो आपका हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, स्लाइटली प्ले अराउंड, आप जानबूझ के मोबाइल उठाइए, जानबूझ के पेन गिराइए, लैपटॉप को इधर उधर करिए, और अगर वो एवरी मूवमेंट फॉलो कर रहा है, you just have to differentiate between calcaria phos and phosphorus. Your work is half done. I always tell that the rubric is not the mechanical calculation or accumulation and forming a totality. You have to understand the patient, you have to observe, and then you can come to a totality. Okay, तो एक मैंने आपको बताया, अगर आपकी ट्रेनिंग पूछे तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोचते हैं, वॉचफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, अगर बच्चा हर मूवमेंट आपका वॉच कर रहा है, अलर्ट है, तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 6 महीने का बच्चा तो वाइब्रेंट होके बात करते हुए हार्ट ऑफ द पार्टी बन के नहीं आएगा ना। तो एक जनरल फील हो गया फॉस्फोरस का, और एक होता है हाउ यू विल पिक अप इन द क्लिनिक. So why are you all so quiet? We have 93 people who are watching this. So if you have any questions, keep putting your questions so that in the end I'll be able to take those questions, right? So yes, अब थर्ड फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा कब हम लेते हैं, जब एक रूब्रिक है डिल्यूजन सीज्ड एज इफ. सीज्ड मतलब क्या होता है, चक्का जाम हो गया है, बोलते हैं ना यार ये तो नेक अकड़ ही गई है, इधर नहीं अकड़ गई है बिल्कुल, साइकिल का टायर जैम हो गया, तो सीज्ड, जब पेशेंट फंस जाए, या फिर सच में नेक का भी बोले यार ये तो बिल्कुल ही हिल नहीं रही, यार मेरी कमर पकड़ गई, बिल्कुल नहीं हिल पा रहा, या फिर बीमारी की वजह से यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ना मैं जा पा रहा हूँ, ना उठ पा रहा, ना सो पा रहा, मतलब वो सीज्ड हो गए हैं. और सीज्ड में 3 ही रेमेडी हैं, हायोसाइमस, कैंथेरिस एंड फॉस्फोरस. अब आपको अगर ऐसा फील आए कि ये तो सीज्ड हो गया है, पेशेंट फंस गया है या जाम हो गया है, या उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि ही इज जैम्ड, ही सीज्ड, जकड़ गया है, तो आपको आसान है हायोसाइमस, कैंथेरिस और फॉस्फोरस में से ही डिफरेंशिएट करना है. हायोसाइमस को हमेशा फियर बिट्रेट का डर हो जाएगा, यार इसकी वजह से कुछ और ना हो जाए, धोखा ना हो जाए. कैंथेरिस बहुत रिपल्सिव होते हैं, वीपिंग, क्राइंग, हेल्प फॉर और डिफरेंट. और फॉस्फोरस जो होता है वो हेल्पलेसनेस में जाता है,
दे बिकम हेल्पलेस, दे वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन द फिजिशियन। तो डिल्यूजन सीज से भी बहुत सारे केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हाँ, और एक और चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि वो बहुत सारे लोगों से अपने सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, इंप्रेशनेबल होते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, लाइट चाहिए। तो दीज आर 4-5 एंट्री पॉइंट्स दैट यू कैन सी, राइट? मैंने कुछ रूब्रिक्स ऐसे लिखे हैं विच यू आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ, बट दे आर यूज्ड इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। फॉस्फोरस का बच्चा जब टेम्पर टैंट्रम करता है या जब ऑब्स्टिनेसी में जाता है, तो जिद होती है, तो क्या चीज़ ऐसी पिक्यूलियर होती है, या गुस्सा आता है तो क्या चीज़ ऐसी पिक्यूलियर होती है कि आपको लगे हाँ यार ये फॉस्फोरस? आप में से कोई बताएगा? Okay, I think everybody is on a silent mode today. Nobody is phosphorus. Nobody wants to interact and give that warmth to the speaker. Anyways, एक रूब्रिक है एंगर अपीज्ड इजिली। अपीज्ड, APPEASED, अपीज्ड इजिली, या फिर टेम्पर टैंट्रम्स चिल्ड्रन इन अपीज्ड इजिली। मतलब क्या होता है? जल्दी बहल जाते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं, कैमोमिला की तरह एक एक घंटा श्रीकिंग ऑब्स्टिनेसी या वीपिंग ऑब्स्टिनेसी में नहीं रहते, जल्दी मान जाते हैं। गुस्सा करे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, थोड़ा समझाया, अरे दे देते हैं, अभी 5 मिनट में देते हैं, अच्छा ठीक है, गुस्सा है, ऑब्स्टिनेसी है, टेम्पर टैंट्रम है, पर अपीज्ड इजिली है, जल्दी मान जाते हैं। एंगर सडनली सीजेस सडनली, तो बहुत ज्यादा अटक के नहीं रहता फॉस्फोरस बच्चा, राइट? फॉस्फोरस को एक चीज और जगह आप पकड़ सकते हैं। फॉस्फोरस जैसे मैंने बोला हेल्पिंग होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, एनिमल्स लव फॉर है, डॉग्स है, सबकी मदद करेंगे, पर साथ साथ वो जब ये बात आपको बताएंगे भी और जताएंगे भी, और ऐसे जताएंगे कि यार मैं तो कितना महान काम कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब सोसाइटी में किसी को भी जरूरत हो ना, मैं सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है वो करते नहीं हैं, पर करने के साथ बताते भी हैं। और वो क्या बताना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि हाउ नोबल आई एम। नोबल मतलब महान, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, इट्स अ नोबल, इट्स योर नोबल ड्यूटी या नोबल फैमिली, तो कितना महान काम कर रहे हैं, सो ग्रेट पर्सन ही इज अ पर्सन ऑफ अ रैंक, ही इज अ, दिस इज नोबल, तो उनको ऐसा लगता है कि हाउ नोबल आई एम, ये उनका डिल्यूजन है, राइट? ओके, हाँ, वन थिंग इज ऑल्सो फॉस्फोरस कि अगर पेशेंट है और अगर आपने उसको दवाई दी और 80% भी ठीक हो गई ना, मेरे पास एक पेशेंट है वो 95% ठीक हो, पर डॉक्टर साहब ना मेरे को ना अभी भी कभी कभार पैरों में दर्द होता है, तो देयर इज अ रूब्रिक डिसकंटेंटेड हेल्थ अबाउट। कितनी भी आप उनको ठीक कर लो, उनका डिसकंटेंटमेंट रहता ही है उनका, वो पूरी तरह से अभी तो मैं 100% ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू, ऐसा नहीं होता। दे आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड अबाउट हेल्थ। हाँ, एक और चीज जो मैंने यूज की है फॉस्फोरस में, देयर इज अ रूब्रिक डिल्यूजन फ्लेम्स ऑफ फायर पासिंग थ्रू देम। तो जो कुछ लोग बोलते हैं ना, यार ऐसा लगता है आग निकल रही है बॉडी से, आग की लपटें निकल रही हैं, इतना जल रहा है मेरा पैर, दैट देयर ऑल्सो यू कैन यूज दिस रूब्रिक। आर्टिस्टिक होते हैं, आर्ट एबिलिटी है। फिर एक रूब्रिक है डिल्यूजन कॉर्नर, समथिंग कमिंग आउट ऑफ एवरी कॉर्नर। इसका एक वर्जन मैंने एक सेमिनार में सीखा था। उसमें क्या था कि पेशेंट बोल रहा है कि यार मेरे को ना बहुत सर्दी हो रही थी, एलर्जी जैसा हो रहा था, तो मैंने एलर्जी टेस्ट कराया, तो उसमें तो बहुत चीज़ों से एलर्जी निकल आई। अब तो यार डर लगता है, पता नहीं कहाँ से किस कोने से कोई एक एलर्जी निकल आए। पता चला हम दरवाज़ा खोल रहे हैं तो पता चला भैया डस्ट से भी एलर्जी है, कुछ खाया तो इसे। अब तो डर लगने लगा है कि यार ऐसा लग रहा है हर कोने में मेरे को हर कोने से एलर्जी है, किसी भी कोने में कोई एलर्जी निकल आएगी। अब तो डर लगता है भाई किस क्या कोने से क्या मुसीबत निकल आए। तो यहाँ पे आप ये रूब्रिक लगा सकते हैं, राइट? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू,
Phosphorus always wants company. So there is a rubric anguish alone when. Company desire for. So anguish alone when में single remedy है phosphorus. Lot of cases of anxiety and depression where patients है मेरे को अकेले बड़ी घबराहट होती है. You know डॉक्टर साहब मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ना कोई मेरे साथ रहे. दूसरे कमरे में भी रहेगा तो चलेगा. मेरे को अकेले सहन नहीं होता. बहुत घबराहट होती है. तो you can think of phosphorus. Clinging grasp at others. दूसरे का हाथ the hands always holding the of his companion. Okay, that is also phosphorus, right? In children there is a rubric coquettish too much children in. What is coquettish? With that vivaciousness they have a little sexual attraction, the desire to attract others in children or in adult, then we take it coquettish. Phosphorus को दो चीजें सहन नहीं होती हैं. पहला हार्ट ब्रेक, दिल नहीं टूटना चाहिए फॉस्फोरस का, और दूसरा एडवर्सिटीज. क्यों? फॉस्फोरस को तो लाइफ एंजॉय करनी है, मस्ती में रहना है, पार्टी करना है, खुश रहना है, सबके साथ ऐश से रहना है, सब दोस्त हैं उसके, ब्रदरहुड है, सबसे जब मन चाहे जो मुसीबत आए जब उससे वो किसी से भी हेल्प मांग सकता है, यू नो. तो जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं तभी एक रूब्रिक है एंग्विश थंडरस्टॉर्म्स इन. थंडरस्टॉर्म क्या होता है? बादल गरज रहे हैं, अभी सब स्मूथ नहीं है घर में, थंडरस्टॉर्म है. तो ये जो है ये फॉस्फोरस को बड़ा तकलीफ देता है, यू नो. फॉस्फोरस एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक में नहीं है. सो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू. they are I feel that they are shallow, you know. That depth of, मैंने जैसे बोला फ्रेंडशिप की, वो भी नहीं होती है. जैसे I said, I have a friend of mine and I was very very close to her, and then I realized that she is the same way with everyone. It is not that you have a special bond with that person. She is this way and there is no actual bond. ये तो मजा मस्ती पार्टी ऐसा है, you know. In the same way, they do not want any responsibility. They do not want adversities. तभी anguish में जाते हैं in thunderstorm. They want that light atmosphere. They want to enjoy life, have a good time, vivaciousness, affection. अभी clinic पे भी जब patient आएगा तो affection returns affection कैसे देखेंगे? जैसे मेरी एक patient है, उसका bed wetting मैंने ठीक किया, तो you know she would get a cake for me, and doctor I've got, or when they'll go somewhere they will get a small gift for you, you know doctor. तो ये जो अफेक्शन है जो आपका उसके प्रति है वो हमेशा रिटर्न करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन. यहाँ पे हम पल्साटिला भी बहुत अफेक्शनेट होता है, बट पल्साटिला को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पल्साटिला सब कुछ खुद के लिए चाहता है, एब्जॉर्ब्स अफेक्शन में है. सब मेरे को दे दो, आप मुझसे नहीं प्यार करती हैं, आप मेरे को नहीं दे सकती, सब मेरे को ही, सारा प्यार मुझको ही चाहिए, स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है. वेरस फॉस्फोरस आपको अफेक्शन लौटाएगा भी, मतलब आपको भी ये महसूस कराएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ अफेक्शनेट यू आर. ठीक है. हाँ, तो अब दूसरी बात आती है लव डिसअपॉइंटेड. अब लव कैन बी इन एनी, बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड. सो जब लव में डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तब दे कैन नॉट हैंडल. तब देयर इज, तो सारे रूब्रिक्स जो हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, डिलीरियम मैनियाकल, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड, डिलीरियम हो जाते हैं. ग्रीफ, love from disappointed, grief undermining the constitution, सारे ऐसे rubrics you will see in phosphorus. Okay, I'll just take a quick look कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है. Till the time, if you have any questions, you can also put so that we can come to an end. हाँ, अडल्टरस मतलब जब मैंने बोला ना कि वो पेशेंट ऐसे दिखाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं और आप ही उसको ठीक करेंगे, क्लिंगिंग में है, ब्रदरहुड में है, बट in actuality, I was giving that example of my brother also. He was taking everything. He was taking allopathy also, antibiotic भी शुरू कर दिया था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रहे थे. This is adultery. What is adultery? मिलावट करना, 4 दवाइयाँ लेना, एलोपैथी भी लेना, होम्योपैथी भी लेना, आयुर्वेदिक भी लेना, राइट? और दिखाएंगे ऐसे कि नहीं यार मैं तो तेरा ही सुन रहा हूँ. So this is adultery. This is hypocrisy.
And I told you, when they come to the clinic, they will not come to the point directly. They will make that friendship, जो मैंने वो phone call का example दिया, they will try to develop that bond and then go ahead. They will hardly come to that point. So yes, and one more thing, in children I have seen that there is a lot of एक बच्ची आती थी एंजाइटी के लिए मेरे पास, तो उसको एक डर था, fear happen something will parents do, something unfortunate will happen to parents. In that also phosphorus is, there is a lot of love and care for others and anxiety about others and fear of losing them. Friends का बहुत महत्व होता है phosphorus के life में. So yeah, this is phosphorus. Any questions? We'll wait for 2 minutes. I have made it a point that we'll make our sessions only for 30 minutes and to the point, so that it's not boring and we can see it quickly whenever we want to. So vivacious, charming, magnetism, desire, magnetized desire to be affectionate, returns affection, seized में देखेंगे helpless के साथ, perseverance में देखेंगे light desire के साथ, and एंजाइटी डार्कन, हेल्पलेसनेस, क्यूरियस ट्रेनिंग. आपसे अगर आके पूछें कि आपने ये केसेस ठीक किए हैं, आपने वॉचफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, राइट? So this is phosphorus. Here I would like to make an announcement. We have been doing webinars and Zoom sessions. So one of our webinar is coming. That is on next Thursday, Friday, 21st, 22nd and 28th, 29th. This is a 4-day, first time I'm taking 4-day webinar. And we'll be showing video cases. So the topic of the webinar is first, that how to study a remedy and how to find out rubrics and understand the picture. Second, it would be, we'll see some old age cases. I feel that the old age is a second childhood of ours, and we go into the same demand and emotional state we feel, and obviously some pediatric cases if we are doing a pediatric seminar. So this would be, so if you want to register fast, you can contact me. I'll give you my phone number here, 7875626071. So you can contact me. 900 is the registration charges. Once you register, you will be added to a WhatsApp group, and then there we'll share all the details. Okay. So again, coming back, all the time we have a lot of questions. I don't know why this time we are not having any questions. I'll just wait for a minute or two. If we have any questions, you can put your questions. So the only motto over here is that we understand homeopathy in depth and we don't make mechanical totality. जैसे मेरा एक WhatsApp ग्रुप है, उसमें कल एक डॉक्टर ने पूछा एक केस, and बहुत ही no offense to anybody, even I do that way. हम सब इंक्लूडिंग मी बहुत ही मैकेनिकल टोटलिटी बनाते हैं कि मतलब रूब्रिक को समझने के लिए या पेशेंट को समझने के लिए आप पहले पेशेंट को समझिए शांति से, क्या क्या चीज पेशेंट को बॉदर कर रही है, और उसको अपनी लोकल भाषा में समझिए, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, व्हाटएवर, and then then come to rubric, right? Thank you for putting up question. So hypocrisy ऐसा होता है जहां आप दिखाते कुछ और हो और अंदर से कुछ और होते हो. हिपोक्रेसी का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने अभी एक बच्चे में दिया था. वो बच्चा क्या करता था, आजू बाजू के जो उसके फ्रेंड्स होते थे, अगर वो उसके घर जाता था तो बोलता है, आप टीवी देख रहे हो, इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं. और मैंने उसकी मम्मी को बोलता कि तो फिर खुद नहीं देखता. नहीं, खुद भी देखता है. तो मतलब जो आप ज्ञान दूसरे को बांट रहे हो वो आप खुद तो कर नहीं रहे. तो दिस इज हिपोक्रेसी. दिस इज वन एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको फ्रेंड्स के रिलेशन में दिया कि वो फ्रेंड्स के साथ ऐसे दिखा रहे हैं कि कितना अफेक्शन है, मतलब जो नहीं है उसको आप दिखाना. It's hypocrisy. Phosphorus is the most hypocrite remedy in our materia medica. Anxiety about health, difference between arsenic and phosphorus. Arsenic और phosphorus एकदम अलग हैं. Arsenic का जो
चिंता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके है। फॉस्फोरस को बहुत ज़्यादा जो एंग्जाइटी है वो डार्कनेस को लेके है। एक बार उसको पता चल जाए क्या बीमारी है, लाइट डिजायर मिल जाए, फिर वो तो भी थोड़ा ठीक रहता है और परसिवरेंस में शांति से जाता है, राइट। आर्सेनिक का ट्रैवल अलग है। आर्सेनिक आई थिंक आई हैव नॉट टेकन आर्सेनिक, वी विल डिस्कस आर्सेनिक। आर्सेनिक को रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, उसको तो भी काम करना है, इंडस्ट्रियस फिनिश इज वर्क, डिजायर टू, लॉट ऑफ एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा ना, उसका ट्रैवल थोड़ा सा अलग है। ओके अच्छा, पीपल वर मैसेजिंग बट आई वॉज नॉट एबल टू रीड। ओके यस, डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड बेलेडोना। बेलेडोना तो बहुत फ्रिवलस और प्लेफुल है और लाइट डिजायर में है। बेलेडोना को अपना लिबर्टनिज्म चाहिए, अपनी मस्ती चाहिए और अपना सब कुछ चलता रहना चाहिए, तो और फ्रिवलसनेस में है, राइट। तो इफ यू विल कम विद कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है बेलेडोना और फॉस्फोरस में, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, देन आई विल बी एबल टू आंसर। ग्रीफ इज द अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस को हार्ट ब्रेक हो या लव डिसअपॉइंटमेंट हो तो बहुत टाइम तक ग्रीफ चलता है। ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक रूब्रिक है, एंड ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड भी एक रूब्रिक है। बिजनेस टॉकिंग कैसे समझते हैं? जब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर मैं ना 4 महीने तक भी दवाई लेने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यार कुछ तो आराम मिलना चाहिए ना, मतलब 10-15% आराम मिले तो हम कितना भी लंबा समय दवाई ले सकते हैं। ये क्या है? बिजनेस बात कर रहे हैं भैया, तुमसे हम पैसे देंगे, दवाएंगे तुम्हारे पास, तो थोड़ा तो आराम मिलना चाहिए ना। दिस इज टॉकिंग बिजनेस। यार रेस्टलेस भी हो सकता है। यस, ऑन बेलेडोना एंड फॉस्फोरस। बेलेडोना वॉचफुलनेस में है ही नहीं, बेलेडोना आपकी तरफ ध्यान है, वो अपने खेल में मस्त होता है। मैंने लास्ट टाइम बेलेडोना का खेल बताया था कि बेलेडोना खेलता रहता है किसी भी चीज से, तो बेलेडोना तो प्लेफुलनेस में आपके पास आएगा, स्माइल करेगा, खेलेगा, मस्ती में रहेगा। और फॉस्फोरस हमेशा, बच्चे बहुत वॉचफुल होते हैं, वो आपके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, अफेक्शन में रहते हैं, वो क्लोज आएंगे, मैग्नेटिज्म में है, मेस्मरिज्म में है, मैग्नेटिज्म डिजायर टू बी में है, राइट। ओके, एनीथिंग एल्स? कैल्केरिया फॉस जो है ना वो एक सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, तो उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैल्शियम के भी हैं, राइट। तो व्हेन यू स्टडी कैल्केरिया फॉस, यू स्टडी some characteristic of calcarea and some in phosphorus, and then you come to calcarea phos, whereas phosphorus is an individual एंटिटी, सिर्फ फॉस्फोरस है। तो कैल्केरिया फॉस में आपको कुछ क्वालिटीज कैल्केरिया की मिलेंगी, कुछ फॉस्फोरस की मिलेंगी, एंड देन इट बिकम्स कैल्केरिया फॉस। इट्स कॉल्ड एज अ सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन। आई टोल्ड यू ना कि जो हमने देखा कि एंग्जाइटी फॉलोड बाय इनडिफरेंस, जिसमें एक्ोनाइट एंड फॉस्फोरस है। एक्ोनाइट बहुत पैनिक में रहता है और एक्ोनाइट को डायरेक्ट फियर ऑफ डेथ और प्रिडिक्टिंग टाइम ऑफ डेथ में रहता है, वेरएज फॉस्फोरस को लाइट मिल, एक्ोनाइट को आप रीअश्योर कर दो कि भैया तुझे कोई बीमारी नहीं है, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और जब आप फॉस्फोरस को रिअश्योर करोगे तो वो भी रिलैक्स होगा। बट फॉस्फोरस साथ साथ में बिजनेस की बात करेगा, वो अफेक्शन से बात करेगा, राइट। तो ये डिफरेंस है। यस, स्ट्रेमोनियम एंड फॉस्फोरस कम्स वेरी क्लोज, पर स्ट्रेमोनियम जो है उसमें जो डिजीज है उसकी तरफ बहुत डर रहता है, बहुत डार्कनेस एग्रीवेट, लाइट डिजायर फॉर, डिल्यूजन डिवोर्ड बाय एनिमल्स, सारी तरफ से ये परेशानी ने मुझे घेर लिया, ये मुझे अब खा जाएगी, ऐसा फील है फॉस्फोरस का, सॉरी स्ट्रेमोनियम का। स्ट्रेमोनियम एक रूब्रिक है डिलीरियम आईज वाइड ओपन, मतलब वो जब पेशेंट होता है ना आपको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के अपने सिम्टम बता रहा होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ ये देख के दवाई दी है स्ट्रेमोनियम से। And one more thing, we cannot go by one, you know, it has to be a totality in a case, and it has not to be a numerical totality. It is not important how many rubrics you take, it is not important what is the length of the case. कल मेरे ग्रुप पे एक डिस्कशन चल रहा था, एंड समवन हैड पुट अ स्मॉल केस, 8-10 लाइन का, एंड देयर वाज अ लर्नर हु वाज सेइंग कि वी हैव टू प्रो फर्दर। यस,
if you ask me, I always take a detailed case. I am very very poor in कि 2 लाइन देखी और दवाई दे दी. I don't have that knack. I am truth telling plain. So मेरे को एक totality लेती है, मेरे को एक कोर्स समझना होता है, and then only I can prescribe a remedy. But there are some seniors of mine or even juniors who छोटा सा देखते हैं and they prescribe. That is an art. If you can develop, it is very good, and it is an art that we should learn from them, you know. So yeah. Hyoscyamus and phosphorus is very very different. Hyoscyamus में delusion wrong suffered, fear betrayed, delusion poisoned being medicine by, fear poisoned being medicine by, delusion injured by his surrounding. ये सब उसका कोर है. मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तो सब अच्छा किया था, कुछ और गलत ना हो जाए. Bed remain. Hyoscyamus I have taken, I think. You should see that Hyoscyamus का video on YouTube. You will get the totality of Hyoscyamus. See, phosphorus has 1343 symptoms in mind chapter. So imagine, it's such a vast remedy. So it is going to overlap with every remedy in our repertory, right? But there are some things which are very very peculiar in phosphorus, and that we need to pick up. So जब आप बाकी रेमेडीज भी पढ़ेंगे तो यू विल फील कि अरे यार ये तो इसमें भी है, ये तो इसमें भी है. बट जो मैंने आपको 8-10 पॉइंटर्स दिए हैं उन पे आप ध्यान रखिए, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉस्फोरस वेरी वेल. आई विल टेक स्ट्रेमोनियम. एस्टोनिश्ड मतलब एकदम से चौंक जाना, एकदम से यार ये मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे किडनी स्टोन कैसे निकला है, यार मैं तो एकदम चौंक गई, मेरे को किडनी स्टोन हो गए, यू नो. दिस इज एस्टोनिश्ड. मेरा स्पर्म काउंट 0 हो गया, यू नो. पेशेंट हक्का बक्का रह जाना, चौकन्ना रह जाना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया. दिस इज एस्टोनिश्ड. ओके. Anything else? Any more questions? So yeah, if you want to register for the session, you can register. Be quick because I'm going to take only, I have already 40, I think 30-40 doctors who have registered. So if you have to register quick, because in the end we don't have much of seats, and we'll make sure that it's just an attempt. I do not claim that I know everything and I'm master of homeopathy. We are all learning and we'll be always learning. So it's just a process, and you can ask me any amount of question. If I don't know, I will always say my word is not the last word. Every doctor has his or her own journey. Lord, कई बार बोलते हैं कोई वही नहीं जिसका मन आ रहा है, जैसे परसीव कर रहा है. Obviously it's a science and an art. So it's my experience that I will come, or my learning from my teachers, or from whatever I have read or whatever I have seen in my patients. Any other person will have a different experience. So it is always very very nice to share that, to share our experiences. Even I can learn from you and you can learn from me, and probably all the other teachers whose videos we have on YouTube and Facebook. So it's always nice to be connected, because then we will be able to treat patients in a better way. We'll have good results. We'll be able to do some good to homeopathy, and we'll be able to break that myth that homeopathy is slow acting, right? So I'll be phosphorus now. It was be so nice to have you all. You are such a wonderful people, you know. Over warmth, over loving, hugging. That is phosphorus, and that you should never forget. You can see that in small things in your clinic or people around you, you know. कई बार आप बोलते हैं यार इतना क्या कर रहे हो, you know. और कई बार आप खुद भी चार्म्ड हो जाते हो फॉस्फोरस की पर्सनालिटी से, कि आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या कर रहा है. So be alert, have that watchfulness in you, so that you can pick phosphorus in your clinic. Thank you everybody. It was wonderful interacting with you. आप लोग की वजह से I am also studying these drugs again, जो मुझे लगता था मुझे आती हैं, but I realized that I really don't know in totality, and every time you read you get a new perspective about the same remedy, and I'm sure we all will learn and grow together. Thank you.